Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we add one more thing to it, that is the reversing array. We want to reverse the array. Okay, in place reverse. That means the array we have, and we will reverse there on by swapping things. So how we will do it? Simple thing is, if we have an array like this, okay, say this is an array here, and we got some elements in it, whatever that is. Say we got 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is index 0, 1, 2, 3, 4, 5, and maybe the 6, or up to 5. That is actually up to 5 is the 6, right? Okay, because 0 to 5 is 6, so we've got a 6 elements, or you could have 7 elements, doesn't matter, or 10 elements, or whatever elements we have, right? Now in this we have some elements in it, say 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and I want to reverse it. I want to, the first thing will be, I need to have the effective address of this array. So that means I all the time use si to point to this location, the first location. How I do that? By no. So whatever the array is, because we have here the array, this one, this is my array, okay, which is the empty right now with the 10 elements, 10 boxes or blocks of memory. So I can have a 10 elements in it. So the name of it is array. Actually, the name of the array is the address of the array in a data segment, right? We have, and we know we have a data segment, and in data segment this array is somewhere, and the base address of it is in the array, the name array, and I'm putting up the effective address of this array into the SI. It will calculate all that base address plus offsets and everything. Now SI and also the offset, and also the where from this base address this array is, and the first block, whatever that is in where. Now SI is put in the first element. I also need some pointer which point to the last element. Okay, so I can simply have a, for example, di pointing to the array, okay, plus 9. So then I will do plus what, 9 to 10, it will point to here, okay. Or now in that scenario I can have the si, which is having the content of si, that is 1, and if I say content of di, that will be 6. Or I don't need second pointer. If I have one pointer, I don't need the second pointer, okay, because if I have a second pointer, then I have to do what, I have to increment si, and I have to decrement di. When I move on, I move si this way, and I move di this way, and when they cross each other, when they, in fact, when si and di are equal, I should stop. I should, क्योंकि इसने इसके साथ किया, 2 ने 5 के साथ किया, 3 ने 4 के साथ किया, ऐसा इंक्रीमेंट हो गया, डी डिक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ क्रॉस हो गया ना आपस में, एस आई और डी क्रॉस हो गया, एस आई बराबर नहीं रहा, बड़ा नहीं रहा, एस आई छोटा रहना चाहिए डी से, एस आई छोटा रहना चाहिए किससे, तब तक करेंगे क्योंकि एस आई डी के बराबर हुआ, या एस आई डी के, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है, अगर 6 एलिमेंट्स है, पहले एस आई यहाँ पे था, डी यहाँ पे था, अब मैंने 1 को 6 की जगह लगाया, 6 को 1 की जगह लगाया, फिर ऐसा ही हो गया यहाँ पे, ठीक है, डी हो गया यहाँ पे, फिर 2 और 5 को किया मैंने, फिर ऐसा हो गया 3 पे, और डी हो गया 4 पे, फिर 3 और 4 को स्वैप किया, अब ऐसा ही हो गया इधर, और डी हो गया इधर, है ना। सो अब ऐसा ही डी की छोटा नहीं रहा, ऐसा ही बड़ा हो गया, क्रॉस कर गया। लेकिन अगर हमारे पास एरे होती 7 की, क्या होती, तो 1 को 7 के साथ करते हैं, 2 को 6 के साथ करते, 3 को 5 के साथ करते, और अब रहता ना 4, मैंने इंक्रीमेंट ऐसा है, ऐसा इज पॉइंटिंग टू दिस, डी इज आल्सो पॉइंटिंग टू दिस, इसको डिक्रीमेंट जब करेंगे, जब इक्वल है तब भी नहीं करना, क्योंकि जब एक ही बनता है इसको क्या स्वाप, तो ये तो है ही, ये तो बीच में है ना, बीच वाला बीच में ही रहेगा, तब नहीं करना। तो जब तक एसआई छोटा है डी से, तब तक करते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास एरे है, आई हैव एन एरे, ओके, आपकी मर्जी है कैसे करोगे, 0 1 2 3 4, फर्ज में मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं,
whatever elements I have. So total capacity of the array is 5. I will point Si to this. How I point Si to this? Array का जो effective address है वो Si में डालो. So Si is pointing to this first block, right? Now I will have, say for example, Bx equals to, उसमें मैं डालूंगा 4. अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 डालूंगा, because that means 0 to 4 मेरे पास. So Bx में मैंने क्या डाला? If I say content of Bx, इसमें elements है 1 2 3 4 5. If I say contents of Si, what will be that? If I say content of Bx, what is that? Wrong. How can content of Bx will be 5? आप क्या बोल रहे हो यार? What is the content of? Content means what's inside. Inside is 1, here is 2, here is 3, here is 4, here is 5. इंडेक्स 4 पे है, ये 0 पे इंडेक्स है, तो पता ही है. जब मैं कंटेंट ऑफ ऐसा ही बोलूंगा, what will be that? What will be the content of Bx? 5. That is stupid. What is Bx holding? What is Si holding? Address of array. Is Bx holding the address of array? I have not put up the load effective address of Bx of array and so on. I have not done it. Bx is having only a digit 4 in it. So if you say content of Bx, ये memory का 4 location देखेगा. For example, ये जो array थी, ये data segment यहाँ पे था. अब data segment की base address है और यहाँ पे ये address है. ठीक है ना? अब data segment for example 1 2 4 6 है base address और इसका offset था for example say 4. So that is first block जो array का है, ठीक है, ये वाला, ये 1 2 4 6 plus 4, that is 1 2 5 0 पे ये पहला एलिमेंट है. सो जो आप कंटेंट ऑफ SI बोल रहे हो, it actually means what is at the address of 1250, because SI में है क्या 12. मैं 50 बार सिखाया मैंने, इतनी स्टूपिड तुम लोग हो. तो सिंपल सी बात है, बिकॉज बेस एड्रेस अगर 1246 है, इफेक्टिव एड्रेस करता क्या है, वो बेस एड्रेस को ऑफसेट ऐड करता है. तो फिजिकल टू बेस एड्रेस क्वेश्चन किया हमने, उसकी न्यूमेरिकल भी हमने की. स्टूपिडिटी की हद होती है. तुम लोगों को पता नहीं क्या मतलब किसने बिठाया एमसीए. एसआई जो है हमारा, जो हमारे पास एसआई जो है, that is actually when I say load effective address of SI of array, what is it happening? Load effective address, it is calculating physical address. What is physical address? Base address plus, अभी भी नहीं बोल पा रहे हो आप, ये हद है. Base address plus, so that means it will exactly calculate what is the physical address of the first block of the array, that is in the SI. So in other words, if I give this example, 1250 is in SI. 12, that is the address, 1250 address of the first block of the array. Now if I say contents of SI, if I say what, it will tell me contents of SI. What is the address at the location, what is the value at the location 1250? That is 1. That is, what is in Bx? क्या इसका effective address है last block का? So how can the content of Bx will give me the 5? It will not give the 4, because when I say Bx it is 4. When I say SI it is 1250. When I say SI it is what? Will content of SI give me 1250? It will give me what is the value at that address. Value at that. Similarly, what is Bx holding? If I say content of Bx, what will you give? Value at the address 4. That is some garbage value. That is some whatever that is. That is not this thing. That is not the array. Right? So how I access? But I need to access 5. I need to access what? So I can say contents of SI plus Bx. Contents of SI plus, because what is SI having? पहले ब्लॉक का एड्रेस, उसको 4 आप ऐड कर दो, Bx में 4 है, वो ऐड कर दो, वो ये वाला एड्रेस निकलेगा. Because if it is 1250,
This is 1251, this is 1252, this is 1253, its address is 1254. So if SI is 1250, if I add it 4, what will happen? It will be 12. What will be that thing? That will be the address of. I can access it that way also, right? So that means, firstly, I am having, say this is 1, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 elements मेरे पास है ना, अरे 10 की है ना, whatever. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक गड़बड़ हो गया, ये है 1, ये है 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and लास्ट में 8 डालेंगे, ठीक है. And I want to reverse it. I want to. The first thing will be to point SI to this. How? Load effective address of. Pointing this. And then I have a BX. In the BX, I will have what? I will have 9 in it. I will have 9 in it. I have what? Index 9. So if I want to access this one, how will I access? Will give me the 1. SI will give the address of the first block. Now BX can't give me this thing. I have that, but I have SI already. So I can say contents of SI plus. Now SI will give me the address of the first location, and then offset will give me the where I want to be. So it will give me the 8. I will put the content of SI into AL, and I will put this into the DL, for example. Okay. Then I swap. I have to put here this 8, and I have to put here this 1. How I do that? What will do? Move into what? Move into content of SI, comma, because DL is holding 8. Bolo. Not constraint, just AL. Because AL is not a pointer. If you say AL, it gives you what's value. Because if you say content of AL, then that means whatever AL is point, AL is having 1 in it. If you say contents of AL, ये इसको पूरा समझो ना. AL में क्या है? AL में खुद 1 है. It will see what is at the address 1. That I don't want to. I want AL जो है वही डालो इसमें. Okay? हो गया swap? Then what I do? I will increment this SI. I will increment SI. SI will point to where? What should I do to the DL? What should I do to the DL? If I decrement DL, what will be in DL then? DL में 9 था, अब क्या हो जाएगा? Next time what will be this thing? Here, what was the SI? SI was pointing to the first block. Say whatever what it was, 1250 whatever it was 0. Okay, at the end. Plus 9 जब हम करेंगे वो निकलेगा 9. अब next time जो increment किया SI को, SI is now what? 1. अगर 1 plus 8 करेंगे, what is that? Again 9. वो तो फिर से यही निकलेगा. बस 9. So we can't decrement DL. What should we do? Think about it. क्योंकि DL आप पॉइंट करना चाहिए किसको, और हमारी फॉर्मूला यही रहनी चाहिए ना सेम, क्योंकि लूप में चलेगा ना मुझे, तो SI प्लस BX ही होना चाहिए. यानी कि जब SI 1 है, 1 को क्या करूंगा मैं ऐड, वो 8 बनेगा. That means BX next time should not be 8, it should be what? Right? Think about this pattern. Now BX डिक्रीमेंट कम हो रहा है ना, डिक्रीमेंट हो रहा है, कम हो रहा है, 9 से 8 7 बन गया, 9 से 7 बन गया. लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये करेगी 1 plus 7 that is 8. ये परफेक्टली इधर आ जाएगी 8 पे. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा इंक्रीमेंट होगा. व्हाट इज ऐसा है ना 2. 2 को मैं क्या, क्योंकि अब लेकिन BX किस पे होना चाहिए 7 पे. सो 2 प्लस, यानी कि नेक्स्ट टाइम इट शुड बी 5. पहले 9 था BX, फिर 7 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए. सम कर रहे हो, ये सम हो रहा है, सब हो रहा है ना. फिर 3 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1. ये लूप में चलाएंगे. CX नहीं करेंगे, सिंपल हम इसको 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट. इसको जैसे ये बोल रहा है, we will subtract
बी एक्स विद 2। एस आई को इंक्रीमेंट करेंगे लेकिन बी एक्स को दो कम करेंगे, कब तक लूप चलेगी? नहीं, इसकी जरिए वो दूसरा प्रोग्राम था, ये मैंने दूसरा तरीका किया। वो मैंने पहला तरीका बताया था, ये दूसरा तरीका है। जब ये dx हो जाएगा, क्या ये bx था या dx था? ये bx था। जब bx हो जाएगा, अगर bx 1 है, अगर यहाँ पे हो गया 1 2 3 हो गया, दैट इज पहली बार, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3 पे यहाँ पे है ना, जब 3 था, 3 + 3 = 6 करेगा इसको 4 और 7 को ये स्वैप, है ना। अब बच गए ये दो। अभी आपका जो bx है वो कितना बनेगा इसके बाद? 1, और ये बनेगा 4, और करेगा इसको और इसको स्वैप। अब इसके बाद क्या रहेगा? 0। जो ही 0 आ गया स्टॉप, जो ही 0 आएगा। आपको समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट है। हमारे पास वन नोट चाहिए। ये सिंपल है, लेकिन आप की प्रॉब्लम है आप प्रैक्टिस नहीं करते घर में। फिजिकल एड्रेस तो ये पढ़ा, कितनी बार पढ़ा हमने, फिर भी अभी समझ नहीं आ रहा इफेक्टिव। फिर भी आप बता रहे हो कि अगर मैं कंटेंट ऑफ उसका आप बता रहे हो वो 5 देगा आंसर, दिस विल गिव मी द हेडेक नाउ ना, आफ्टर टीचिंग सो मच यू स्टिल टेल मी दीज थिंग्स। और आपके पास वीडियोस भी है, अनफॉर्चुनेट। अभी हमें वन नोट क्यों, अच्छा ये इसमें ये था, इसको क्लियर करना था। देखिए ध्यान दे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 और लास्ट में 0 रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इंडेक्स? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जो हमारा एस आई होगा इट इज पॉइंटिंग द फर्स्ट, ओके। सो एस आई जो है, कंटेंट्स ऑफ एस आई जो है वो मैं डालूंगा, किस में डालूंगा? ए एल में मूव करके, ठीक है। और जो कंटेंट्स ऑफ एस आई प्लस बी एक्स है वो किस में डालूंगा? मैं डी एल में, ठीक है, मूव करके, ओके। फिर मैं ए एल डालूंगा इसमें, डी एल डालूंगा मैं इसमें। वो मसला तो है नहीं, मसला हमारे पास है कि अगर एस आई पहले कितना है? 0, तो यहाँ से डी एल बी एक्स जो मेरे हैं वो कितना है? 9, ठीक है ना। जब और मैं कर रहा हूँ 0 + 9 पहली बार, 0 प्लस दैट इज 9, निकला ना ये। सो दैट मीन 0, और इनको फिर स्वैप करेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे एस आई को। एस आई किसको पॉइंट करेगा? अब एस आई 2 को पॉइंट करेगा, और इसको मैं 2 कम करूंगा, किसको? बी एक्स को 2 कम करूंगा, ये बनेगा 7, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलेगी ये निकलेगी 1 + 7, क्योंकि एस आई विल बी 1 आफ्टर इंक्रीमेंटिंग एस आई विल बी 1, और जो फॉर्मूला मेरी सेम रहेगी ना उसको मैं चेंज करूंगा। 1 + 7 इज हाउ मच? 8। तो 8 की तो बात हो रही है, ये है ना 8। तो ये 8 जो है वो 9 और 2 स्वैप होगा, 9 इधर 2 इधर, ठीक है। ऐसा इंक्रीमेंट होके कहां बनेगा? 2। ऐसा इज 2 प्लस इसको डिक्रीमेंट कितना करेंगे? 2, ये 5, 5 + 2 इज, तो 7 क्यों बना जाएगा? करो 8 7 को और 2 को स्वैप, 2 में 3 है, ये मत जरूरी है कि यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हमें इंडेक्स की बात करना है। जो 7 लोकेशन पे है उसको 2 लोकेशन के साथ क्या करो? स्वैप, 8 इधर 3 इधर, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा एस आई, दैट विल बी 3, ना एस आई इज 3, और ये कितना होगा? 3, 3 + 3 इज एग्जैक्टली 6। 7 और 4 को स्वैप, 7 इधर 4 इधर, इसको इंक्रीमेंट करके कितना बनेगा? एस आई का किसको पॉइंट करेगा? 4 को। एस आई इज पॉइंटिंग टू 4, राइट। और सो एस आई इज 4, हाँ। और जो आपका ये है डेक्रीमेंट होकर कितना आ जाएगा? ये 1 पे आ जाएगा, प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 पे आ जाएगा ना। 4 + 1 इज, सो दैट इज व्हाट आई वांट। सो 4 और 5 को स्वैप करो, 6 इधर गया 5 इधर गया, इंक्रीमेंट करो एस आई, एस आई कितना बनेगा? एस आई 5 बनेगा, ठीक है। और ये कितना बनेगा? 0। जो ही ये 0 हो गया तो हम कह सकते हैं जंप ऑन एबो, जंप ऑन। जब तक बी एक्स हमारा 0 से एबो है
तब तक जंप ऊपर लूप पे लगाओ, अगर नहीं है नीचे आ जाओ, काम हो गया, डिस्प्ले करो मेरी एरे। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, मेरी समझ नहीं आता क्यों, वरना इट इज सो सिंपल, 5 मिनट जॉब, 5 मिनट का प्रोग्राम, 5 मिनट के प्रोग्राम में इतना, क्योंकि आपको जो इफेक्टिव समझाए थे वो चीजें भूलना नहीं है ना, ठीक है, बार बार कहाँ मैं पढ़ाऊंगा इतना, इट गिव्स हेडेक। यहाँ पे मेनू 3 करेंगे, टेन कमा 13 प्लस 5 टू रिवर्स एरे व्हाटएवर, ठीक है ना, और डॉलर साइन कर दो इसको, क्लोज कोट्स, ठीक है। और ये वाला मेनू हम ऐड करेंगे कहाँ पे, कंपेयर केस विद, कंपेयर एल विद 5 तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा वो नहीं किया, ऊपर था वो 5 फॉर स्मॉलेस्ट, ठीक, तो फिर ये इसी में करेंगे हम, ये है ना, अगर कंपेयर करेंगे L4 को, जंप ऑन दिस, अगर 5 है तो जंप कहाँ करेगा, केस वैल्यू कहाँ है, जंप ऑन इक्वल टू केस, फिर केस पे हमने किया ही नहीं है जी, हाँ यहाँ पे, यस एग्जैक्टली, कंट्रोल सी, कंट्रोल मेनू 3 पे आप इसको करें, ठीक है ना। केस 5 ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, अगर 5 है तो जंप करो वरना डिफॉल्ट पे जाओ, तो केस 5 हमें बनाना है, तो केस 5 बना चुके हैं हम यार, क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई, किया जो है, क्या बोल रहे हो तुम लोग यार, स्मॉलेस्ट तो हमने किया हुआ है, नहीं नहीं वो यहाँ पे हमने किया हुआ है ना, यहाँ पे कहाँ पे, ये 6 करना है, दिस इज केस 6, प्रेस 6 टू कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, क्रेस, कंपेयर करेंगे एल के साथ 6 के साथ, अगर हुआ तो कहाँ जाएंगे, केस 6 पे जाएंगे, तो केस 6 बनाएंगे हम यहाँ पे, कहाँ पर है केसेस, हाँ ये है ना, इसको मैं सीधे कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूँ, और इसको लिख रहा हूँ मैं केस 6 है, ठीक है ना, रिवर्स एरे पे जाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले कि मैं डिस्प्ले कराऊंगा कि भाई मेरा पुरानी एरे क्या थी, नई एरे क्या थी, ठीक है ना, आई विल से बिफोर रिवर्स, हाँ, बिफोर रेव msg, बिफोर रेव मैसेज, हाँ, बिफोर रिवर्स मैसेज, समझ में आ रहा है ना, db 10 कामा 13 कामा, मैं कहूंगा भाई साहब एरे बिफोर, बिफोर रिवर्स, ठीक है, हाँ, इसको मैं फिर और ये दूंगा 10 कामा 13 वहीं पे, और डबल कोट्स में डॉलर साइन, ठीक है ना, इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं ये आफ्टर रिवर्स भी करूंगा इसी में, यानी आफ्टर रिवर्स भी हम डिस्प्ले करेंगे, बिफोर रिवर्स भी डिस्प्ले करेंगे, हमें पता चलेगा ना कि बिफोर रिवर्स क्या थी और आफ्टर रिवर्स क्या थी, तो इसको मैं खाली लिखूंगा आफ्टर, आफ्टर रेव, ठीक है ना, AFTER, आफ्टर रिवर्स मैसेज, मैं कहूंगा एरे आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है ना, 10 13 आगे भी है पीछे भी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा हूँ ना केस 5 पे, केस 6 पे, न्यू लाइन तो हो गया, चलो ठीक, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैं प्रिंट स्ट्रिंग करूंगा, प्रिंट st और बिफोर, बिफोर रेव मैसेज, है ना, और जब मैं रिवर्स करूंगा फिर इसको, उसके बाद मैं क्या करूंगा कॉल, प्रिंट st और
आफ्टर रेव, ठीक है ना, बिफोर रेव, बिफोर, हाँ, तो कॉल करेंगे किसको हम, बिल्कुल कॉल करेंगे हम जो हमारा प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कौन कर रहा है हमारा प्रॉक, प्रिंट ए आर है, प्रिंट ए आर नाम है इसका, यही कर रहा है ना प्रिंट, इसलिए प्रॉपर लिखना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो। आपको समझ आ रहा है। इससे पहले कि मैं कॉल रिवर्स एरे को कॉल करूंगा, मैं मैसेज दे रहा हूँ कि बिफोर क्या है, हमारी एरे कैसी थी, और प्रिंट एरे मुझे प्रिंट करके देगी ये, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं रिवर्स को कॉल करूंगा कॉल, वो रिवर्स करके देगा ना, उसके बाद मैं प्रिंट स्ट्रिंग को फिर से कॉल करूंगा, आफ्टर रिवर्स मैसेज लिखूंगा भाई आफ्टर रिवर्स क्या है, और प्रिंट करूंगा, और क्या करूंगा, फिर से मैं कॉल करूंगा इसको। डज मेक सेंस, ठीक है ना। रिवर्स मैसेज कि बिफोर एरे, रिवर्स एरे ये है, और फिर प्रिंट को कॉल किया, वो प्रिंट करके देगा। उसके बाद रिवर्स कॉल किया, वो रिवर्स करके देगा। उसके बाद मैसेज की प्रिंट की भाई आफ्टर रिवर्स क्या एरे है, और फिर से प्रिंट करके दिया, जो प्रिंट करके देगी एरे, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है बनाना, नाम देखना बराबर लिखा कि नहीं है, इसको कौन लिखेंगे, रिवर्सिंग एरे। हाँ जी, क्या क्या नाम था, रिवर्स एरे यही है, रिवर्स एरे यही है, पहले देखो 6 में, हाँ रिवर्स एरे, ठीक। क्या लिखना चाहिए पहले, रिटर्न, रिटर्न के बाद रिवर्स एरे, ये देखना मैं ठीक लिख रहा हूँ स्पेलिंग या नहीं, रिवर्स एरे एनपी, ठीक है ना। तो पहला काम जो हम करेंगे इसमें क्या करेंगे बताओ चलते, लोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एस आई, किस में डालूंगा मैं, एरे का डालूंगा ऐसे में, ठीक है ना। मूव इनटू बी एक्स में कितना डालूंगा मैं, 9, ठीक है। और ये मेरा लूप चलेगा यहाँ से रिवर्स वाली, ठीक है। वेरी गुड, कंटेंट ऑफ एस आई जो अब मेरे होंगे वो किस में डालूंगा मैं, मूव इनटू ए एल, कंटेंट्स ऑफ, इतना आधे घंटे से ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, बोलो सारे बोलो ना, एक मुरसल नहीं बोलेगा। मूव, एस आई प्लस, वेरी गुड, एंड विल गिव द एग्जैक्ट एड्रेस द लास्ट ब्लॉक, वरना मुझे पॉइंटर लगाना है लास्ट से भी, है ना, तो उसमें प्लस करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट देगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इंडेक्स किया, ठीक है। ओके, फिर हो गया। अब स्वैप करो, पहले करेंगे ना, एल डालेंगे उसमें, डीएल डालेंगे इसमें, किस में डालेंगे एल, मूव इनटू एसआई, एसआई में क्या डालेंगे पहले, कंटेंट ऑफ एसआई में क्या डालेंगे हम, डीएल डालेंगे क्योंकि डीएल में लास्ट एलिमेंट है ना। मूव इनटू एल नहीं, एसआई प्लस क्या डालेंगे इसमें, एल, ठीक। फिर वेरी गुड, इंक्रीमेंट करेंगे एसआई को, सब bx2, माशाल्लाह, जंप ऑन एबो, हाँ, जब जंप ऑन एबो अगर 0 से बड़ा हुआ, bx अगर 0 से बड़ा है तब जाके जंप मार, वरना किधर मारेगा जंप, और कुछ करने का है, बस हो गया, दैट्स इट, और तो कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया काम हमारा, मारो। इतना छोटा प्रोग्राम था ये, लेकिन एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगता है तुम लोगों के पास, समझ ही नहीं आता तुम लोग क्या मसला है। एंटर एरे एलिमेंट्स, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, प्लस 1 2, अब मैं रिवर्स करना चाहता हूँ भाई साहब 6 डायरेक्ट, सो एरे बिफोर रिवर्सिंग 1 2 3 4 5 7 8 0, एरे आफ्टर रिवर्सिंग 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बिंगो, ठीक है। इज दैट क्लियर, 6 to exit, wait, plus 6 to exit। किसी को प्रॉब्लम है भी, उसको प्रॉब्लम मैं करूंगा नहीं, उसको मार दूंगा, मारूंगा मैं। उसको पीटूंगा मैं, जिसको समझ नहीं आया, उसको उल्टा लटकाना है और फिर पीटना है, सिंपली, जस्ट किडिंग। एनीवेज,
मेहरबानी करके मेहनत करो घर में। ये नहीं ऐसा होता है, देखो क्या होता है कि आप एग्जाम में वेट कर रहे हो, एग्जाम जब होगा आप करो इस प्रिपेयर, ऐसा नहीं होता। जो भी आपने किया हम छोटा छोटा कर रहे हैं ना, ये छोटा छोटा घर में प्रिपेयर करो, ये बड़ी बात बनती है। एक एक ड्रॉप से पूरा बकेट बनेगा। अगर आप फिर बोलोगे बंकर एक के साथ बकेट जमा, तो दैट्स नहीं, वो नहीं होगा जमा। यही आपके डीबीएमएस में हो रहा है। ये 2 महीने से आप आ रहे हो ना, 2 महीने से हल्का हल्का पढ़ना है, ये सिंपल हो जाता है, पढ़ाई सिंपल हो जाती है। मेन चीज इज टाइम टेबल, यू अंडरस्टैंड? मेन चीज इज टाइम टेबल। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा छोटा बच्चा घर में है वैसे ही आप भी। आई कंसिडर लाइक दैट, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू, मुझे गुस्सा भी आता है, वरना मैं सिलेबस कंप्लीट करके या खत्म किया, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कि आप सीखोगे नहीं, मतलब इसलिए मुझे गुस्सा आता है, बिकॉज आई वांट यू लर्न। जैन मेरा था, उसकी छुट्टी होगी, सिंपल बात, उसकी ऑफ हो गया ना उसका, पहले 7 दिन 4 5 दिन उसने सिंपली जाया किया, उसको मैंने कहा ये करना वो करना, कुछ नहीं किया उसने। उसके बाद मैंने दो चीजें की, एक मैंने टाइम टेबल बनाया। क्या बनाया? टाइम टेबल के हिसाब से ये करना है। सो टाइम टेबल जब बना, जो ही टाइम टेबल बना उसकी लाइफ स्ट्रीमलाइन हो गई। वो खुद उठ रहा है, नींद से उठ रहा है। उसके बाद मैंने कहा उसको जब चाय पिएगा, कुरान का वीडियो एक वो हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उनको रिवाइज करना एक एक वीडियो, और मुझे प्रेजेंटेशन देना शाम को, वो रिवाइज। उसके बाद मैंने ये इस घंटे में आपको ये करना है, इस घंटे में टीवी देखना है, इस घंटे में आपको खेलना है, इस घंटे में आपको लैपटॉप के साथ छेड़खानी करनी है, वगैरह। वो सारी चीजें मैंने उनको रखी। और दूसरी चीज मैंने की इंपॉर्टेंट, मैंने पॉइंट्स रखे। अगर फजर में उठा 100 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट्स का है 1 रुपी, सिंपल एज इट इज। सो वो लगा है मैथ करने में। आज वो फजर में उठा, उसने कहा 100 मिल गए मुझे, 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है। वो कोई चीज करता है उसको 20 पॉइंट देता हूँ मैं उसको। लेकिन मेन चीज है टाइम टेबल, ठीक है। जब आपका टाइम टेबल रहेगा ना, उसके देन यू स्टिक टू द टाइम टेबल। अब टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम। जी, ये स्टॉप नहीं किया हमने भी।